Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Let everyone join. We'll give 1 minute. Good afternoon, all of you. We'll start the class. Switch on your cameras. I hope there is no confusion in the link now. Can you name the topics that we have studied till now? क्या क्या पढ़े आप लोग? Career planning start से कीजिए. Definition. चलिए सुनील. Sorry, ma'am. Career planning में क्या क्या topics cover हुआ? Start से बताओ. Last class में तो मैम entire process of career planning का हुआ था वो. और उसके पहले से? उसके पहले से what is career planning? Right? The need of career planning. क्या need है? Now the need of career planning according to the need for organization as well as the need for an individual. Okay, the need for individual. People are joining. Let them join. Since the last 2 classes we are doing process of career planning, right? In today's class, last class में हमने क्या किया था? The process of career planning किया था? Yes, ma'am. इस क्लास में we will do the benefits of career planning. Write down the benefits of career planning and switch on your cameras. Write down the benefits of career planning. First point, it helps the individual. Yes, ma'am. You proceed, ma'am. Benefits of career planning. Write down the topic. Need तो आपने पढ़ी कि need क्या होती है. Now we will study the benefits of career planning. क्या क्या benefit होता है अगर career planning किया रहता है. इसके पहले classes में we have gone through why the career planning is important. So we studied it from both point of views, the organizational point of view and individual point of view. Write down the need. First point, career planning helps the individual you write down the points first and then I'll explain it. We will try to understand it through interaction. क्योंकि career planning समझ लेने के बाद ये सब आप खुद explain कर सकते हैं. I'll just give you the points. Career planning helps the individual to have the knowledge of various career opportunities
various career opportunities, his priorities, etc. Various career opportunities, his priorities, etc. Second point, helps a person, या लिखिए helps an employee, helps the employee to select the career which is suitable to him according to his lifestyle, preference, family, and environment. Lifestyle, preference, family, and environment. Next, it helps the organization. It helps the organization to identify talented employees who can be promoted. Next, internal promotions. Internal promotions, upgradation, and transfers. Internal promotions, upgradation, and transfer motivate the employees boost up their morale, and increase job satisfaction. It leads to a low employee turnover. Next, low employee turnover. Next, increased job satisfaction. Enhances employee commitment. Increased job satisfaction enhances employee commitment and creates a sense of loyalty to the organization. Next, last point. An organization with good career plans is able to have a better image in the employment market This helps it
This helps it to attract and retain competent people. मैम इसके बाद क्या बोलें? This help to attract and retain competent people. Okay. बेनिफिट्स उसका लगभग करियर प्लानिंग का जो बेनिफिट्स होता है, मोर और लेस, this is the points that you will find here is similar to the need that you found either when you were going through the organizational need or when you were going through the individual need. Right? Now we will discuss these points one by one, and I am sure that now when career planning syllabus is almost over, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में करियर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपका करियर डेवलपमेंट का है और सक्सेशन प्लानिंग का है. उसको स्टार्ट करने के पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी करियर प्लानिंग को लेकर के डेवलप कर चुकी है कि ऐसे पॉइंट्स को आप समझ भी सकते हैं और एलाबोरेट भी कर सकते हैं. सो क्विकली एवरीवन स्विच ऑन द कैमरा and we will make the class interactive. It should not take time. Switch on your cameras. बैटरी लो हो गया मैम. सुमन, यस मैम. फोन का बैटरी कैसे लो हो जाता है? मैम 10 बजे से बैठे हुए हैं छत पे. लगातार क्लास हो रहा है? अभी मैम यस मैम क्लास हो रहा था मैम उधर सर का. चलो, रेस्ट ऑफ यू कैमरा ऑन कीजिए and participate in discussion. What is the first point? Who will explain the first point? First point क्या है? Read out करो. कल्पना, you read out the first point. Fast. Kalpana? Yes, ma'am. Can you hear me? Yeah. Read out the point. First point. लिखी हो कि नहीं लिखी हो? मैम छूट गया है इसलिए नहीं. अच्छा, एक पॉइंट छूटा है ना, बाकी बताओ. क्लास है वो सेकंड वाला छूट गया था. पहला में लिखे है करियर प्लानिंग. क्या है करियर प्लानिंग का? अभी लिखी हो कि नहीं बेनिफिट्स? अभी छूट गया था मैम. सारा छूट गया है? अभी वाला थोड़ा सा छूटा हुआ है करियर प्लानिंग. ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वही बताओ. ठीक है मैम. करियर प्लानिंग टू हैव नॉलेज कैरियर prior to extra help employee property select to careers suitable. What have you written, Kalpana? And others, if you do not participate and keep the class like this, I asked you to have interactive session and then you switched off your cameras. So if you do this, it will be very easy for me to mark attendance. Way then Akanksha, I know. Suman switched on his camera for a while. Vineet opened the camera for a while. Sunil opened his camera. And the rest of you are sleeping. I'll consider you sleeping. It will become very easy and convenient for me to mark attendance for this class. You take care of your attendance then, in that case. Wait, read out the point. मैम मैंने थर्ड पॉइंट से लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा लेट है. कोई बात नहीं. Akanksha, have you written from the first point? Yes, ma'am. It helps individuals to have the knowledge of various career opportunity and his priorities. What does this line mean? This line means. मैम मतलब हाँ, बोलो. मतलब कैरियर प्लानिंग किसी भी इंडिविजुअल को ये मतलब जैसे वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसमें उसको ये पता चलता है कि उसके करियर के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है.
या उसकी जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सबको समझ में आया? इस पॉइंट का यही मतलब है, बाकी इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट, आकांक्षा सेकंड। Helps the employer to select the career which is suitable to him according to his lifestyle, family preferences and environment. Okay. In the last class, did I tell you something about career counseling? Yes, ma'am. I explained you कि जो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिनकी HR एक्टिविटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन करियर काउंसलिंग के तरीके से एक वर्कशॉप या प्रोग्राम जैसा चलाते हैं. These organizations, they call the employee in small groups or small bunch of people. These people are not interviewed or counseled for any purpose of promoting them to higher posts. Rather, कई बार हम बहुत डिसोरिएंटेड होते हैं अपने करियर को लेके. हमारी स्किल्स कुछ और है, हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, हम किसी और डायरेक्शन में बढ़े जा रहे हैं. बट व्हाट इज सेड अबाउट योर करियर थिंग इज दैट if you are actually interested in the career you are pursuing, you will do more good in that, you will excel in that career, right? जैसे आर्ट्स वगैरह का जो करियर होता है, बुटीक का करियर है, डिजाइनिंग का करियर है, ये सब में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप पैशनेट नहीं हो सकते हैं. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी आप MBA करके ही जाएंगे तो 100 तरीके का डोमेन होता है जिसपे आप वर्क कर सकते हैं. Even if you go to HR, you have multiple options in just HR field. Okay, and as you go to big organizations, हर छोटी सी चीज का, हर एक छोटी का मतलब हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी का पूरा डिपार्टमेंट है. जैसे टैलेंट एंड एक्विजिशन is a huge department in itself. Recruitment is a huge department in itself. Onboarding, performance appraisal, ये जैसे आप जोनल हेड है रिक्रूटमेंट के, तो you need to identify your area of interest. Somebody who is working in data intelligence department, that person may have more interest in internal communications of any organization rather than journalism. So therefore, career counseling sometimes gets you oriented towards the real interest and real caliber so that you can pursue it with full-fledged efforts. समझ में आई बात ये पॉइंट का? Yes, ma'am. हाँ वेद बोलो. मैम जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आर्मी हो गया, रेलवे हो गया, जो कि अगर एम्प्लॉय स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उनको वो प्रमोट करता है आगे. हाँ. खेलने में, तो ये वो भी इसी के अंदर आता है करियर. हाँ, इसमें आता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती है. सिर्फ आर्मी क्यों, ONGC का भी अपना स्पोर्ट्स का टीम है, बास्केटबॉल की टीम होती है ना. इन लोगों का तो नेशनल लेवल पे कंपटीशन भी होता है. इसमें ही आता है. नेक्स्ट पॉइंट आकांक्षा, रीड आउट. It helps the organization to identify a talented employee who can be promoted. Okay, Vineet will explain this point. Quickly switched off his camera. Akanksha, repeat again. Wait, why haven't you written, Vineet? I have written, ma'am. तो फिर तुम खुद का पढ़ो, उससे क्यों पूछ रहे हो? After that, Muskan will answer. She has raised her hand. मैम एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस रहते हैं वो मतलब आगे बढ़ सकते हैं, प्रोमोट हो सकते हैं. मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को चाहती है कि वो आगे प्रमोट हो सके. एक्सपीरियंस नहीं, टैलेंटेड बोलो. जरूरी नहीं है कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा टैलेंटेड बंदा हो उससे. ठीक है, टैलेंट जिसके पास हो वो आगे मतलब प्रमोट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन. प्रमोट हो सकते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है. तो एक तरीके से टैलेंटेड एम्प्लॉइज को सीख करने में भी करियर प्लानिंग हेल्प करता है. ठीक है, मुस्कान, she has raised her hand. Okay, Akanksha, read out the next point. She'll answer. Internal promotion, upgradation and transfer motivate the employee, boost up their morale and increase job satisfaction. बताओ. मैम जो इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं उनका जितना भी उनको मोटिवेट करता है, उनका मोरल जो होता है
उसको बढ़ाता है जो ऑर्गेनाइजेशन होता है। नहीं, तुम बहुत जनरल आंसर दे दी। रीड आउट द लाइंस योरसेल्फ एंड देन आंसर स्पेसिफिकली, क्या कहना चाह रहे हैं। एक लाइन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इट्स नॉट एम्प्लॉयज, इट इज इंटरनल प्रमोशंस। आप लोग रिक्रूटमेंट पढ़े हैं थोड़ा सा? HR वर्कशॉप में पढ़ाए थे हम रिक्रूटमेंट। यस मैम। उस समय तो तुम लोगों का शायद एग्जाम था यूनिवर्सिटी का, सो यू डिड नॉट पे अटेंशन टू इट प्रॉपर्ली। लेकिन उस समय हम बताए थे आपको कि इंटरनल प्रमोशंस का क्या यूज होता है। तो क्यों रिक्रूटमेंट इंटर्न, देखो थोड़ा बहुत बता देते हैं अभी। रिक्रूटमेंट 2 तरीके का होता है, ठीक है। जैसे कि ये सुने हो कि तुम लोग की बैंक में क्लर्क का रिक्रूटमेंट होता है, कुछ सालों बाद इंटरनल एग्जाम्स देके वो PO में प्रमोट हो जाता है। यस मैम। ये जानते हो ना। और डायरेक्ट PO भी आता है, माने IBPS एक डायरेक्ट PO का भी एग्जाम कंडक्ट करती है, तो वो सीधा ऑफिसर ग्रेड पे जाता है, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1। और क्लर्क को प्रमोट होके आने में 3 साल कैसा लगता है, ठीक। अब क्लर्क के लिए करियर प्लान क्या है? तो देखो, पहली बात, जो क्लर्क बना और क्लर्क से PO बना, वो कहलाएगा इंटरनल प्रमोशन, ठीक है। उसको कहते हैं इंटरनल प्रमोशन या इंटरनल रिक्रूटमेंट। और जो बाहर से डायरेक्टली आया वो हो जाएगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अगर तुम करियर प्लान क्लर्क के लिए कुछ बनाओगे ही नहीं, यानी क्लर्क क्या वो 15 साल 20 साल करियर ही क्लर्क ही रह जाएगा, तो उसका कितना मोटिवेशन रहेगा उस जगह पे काम करने का? सेटिस्फैक्शन होगा? नो मैम, वो जॉब छोड़ देगा। छोड़ने के लिए सोचेगा जरूर, यस ठीक मैम। है, जरूर सोचेगा। कि हम लोग नहीं बोलेंगे ये कि हाँ जॉब छोड़ ही देगा, बट अगर एम्प्लॉय अपने सेटिस्फैक्शन के बिना भी क्लास करता है, जैसे तुम कोर्स कर रहे हो, तुम्हारे BBM में कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सीरियसली दे आर टेकिंग अप देयर करियर एंड द सब्जेक्ट वेरी वेरी सीरियसली। सम स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्डिंग देयर बेस एज BBM एंड देन वो MBA करेंगे या हायर एग्जाम्स की तैयारी करेंगे या कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। कुछ लोग जो सेटिस्फाइड नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है, वो जैसे तैसे BBM निकाल देंगे, वो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो पास तो तुम तब भी कर जाओगे ना। लेकिन जो लोग मोटिवेटेड हैं और सेटिस्फाइड हैं वो कोर्स अच्छे से कर रहे हैं, यही डिफरेंस होता है। वैसे एम्प्लॉयज में जो सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड होते हैं और नहीं होते हैं, सब छोड़ देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सेटिस्फाइड भी नहीं है, मोटिवेशन भी लो है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाती है। ओके, सो इंटरनल प्रमोशंस का मतलब करियर प्लान हुआ। जैसे करियर को तुम क्लर्क को तुमने दिखाया कि आपके जस्ट ऊपर का करियर चार्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर PO, उसके ऊपर का क्या है डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर का रैंक, उसके ऊपर ब्रांच मैनेजर, उसके ऊपर जो भी जैसा होगा, बैंक का ब्रांच के हिसाब से भी होता है, फिर जोनल मैनेजर, चीफ मैनेजर, स्केल 4 ऑफिसर होता है, इस तरीके से। तो द क्लर्क हैज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लर्क को ये पता है कि मैं 3 साल यहाँ स्पेंड करूंगा तो आफ्टर 3 years आई बी प्रोमोटेड टू ऑफिसर ग्रेड, राइट। क्या ये मोटिवेशन नहीं है वर्क प्लेस पे काम करने का? है। प्लस मान लो ट्रांसफर का प्रोविजन नहीं हो, तुम्हारा पोस्टिंग हो गया है यहाँ से, अब तुम पैन इंडिया जॉब में हो, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई चेन्नई। अब चेन्नई में तुम, चेन्नई से कोई छोटी जगह का एग्जाम्पल लो, सपोज तुम पुडुचेरी में हो, तुम पोस्टिंग हो गई तुम्हारी पुडुचेरी, एंड इफ यू आर गुड एम्प्लॉय, तुम्हारा रेपुटेशन अच्छा है, यू वांट टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, सम रीजनल ऑफिस, ब्रांच, हेडक्वार्टर्स, जहां तुमको वर्क अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, in that case the transfers is also a provision that will boost your morale, कि there is a scope, there is a charting of career plan in the organization. Understood? Read out the next point. It leads to low employee turnover, increased job satisfaction, enhances employee commitment, and create a sense of loyalty to the organization. Loyalty, okay. It would lower employee turnover. पहले बताइए टर्नओवर क्या होता है, ये हम बता चुके हैं आपके क्लास में। टर्नओवर क्या होता है? तुम लोग को पेरोल पढ़ाते समय हम बोले थे कि ध्यान से पढ़ो।
सब सिलेबस है तुम लोगों का फाइनल में। मैम जब एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता और वो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाता है, तो मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आकांक्षा, यू आर राइट बट टू एन एक्सटेंट। हर डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए उसमें 2-3 कीवर्ड्स होता है। हम ये तुम लोगों का पेरोल का क्लास लेते वक्त भी बोले थे कि इंग्लिश पे तुम लोग बहुत फोकस करते हो कि मैम इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है। अभी तो तुमने इंग्लिश में बात की आकांक्षा, दिस इज द मैसेज टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स आल्सो। लेकिन उसने एम्प्लॉय टर्नओवर डिफाइन करते वक्त जो कीवर्ड है उसका वो छोड़ दिया। तो still your definition will not make an impact on the mind of interviewer. एम्प्लॉयज टर्नओवर, पहला फ्लॉ तुम्हारी डेफिनेशन में जो पहली गलती थी वो ये तुमने बोला कि एम्प्लॉय जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब टर्नओवर होता है। ये गलत है। टर्नओवर सिर्फ एम्प्लॉय के जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से नहीं होता है। टर्नओवर तब भी होता है जब देयर इज अ स्कोप ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है, तुमको 25,000 दे रही है, लेकिन कहीं अगर तुम्हारा स्कोप है 35,000 का, क्या तुम छोड़ के नहीं जाओगे डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है? तुम जाओगे ना? तुम यहाँ तुम्हारा जॉब यहाँ पटना में है, तुमने बीबीएम के बाद पटना ज्वाइन किया, तुम अपने पेरेंट्स के साथ अभी रह रहे हो, तुम्हारे पापा की ट्रांसफर हो गई गुजरात, नाउ इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टे हियर। और अभी तो तुमको एज अ बैचलर ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जस्ट इमेजिन कि you people have a family of your own. Okay, the boys can consider you have wives, the girls can consider you are living with your husbands in your family. ऐसे केसेस में भी एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अगर तुम्हारी फैमिली का जियोग्राफिकल शिफ्ट है तो क्या होता है कि उस समय भी आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से, और ये इनएविटेबल होता है। दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छे जॉब्स को भी इस कारण से छोड़ा जाता है। ओके, हम लोग जॉब करते हैं एचआर के टाइम, जब आप एचआर पढ़ेंगे तो आप पर्सनल रीजंस को हमेशा कंसिडर करेंगे, क्योंकि एचआर पॉलिसी बनाते समय भी ये सारे फैक्टर्स का बहुत ज्यादा कंसिडरेशन होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर 2 रीजन से होता है, पहला अवॉइडेबल और दूसरा अनअवॉइडेबल। मैंने जो इतना कारण आपको बताया वो अनअवॉइडेबल रीजन है। मैरिज, लड़कियों का मैरिज, मैटरनिटी पीरियड, ये अनअवॉइडेबल रीजंस है। ऐसे केसेस में बहुत लड़कियों ने नौकरी छोड़ दी है, ये देखा गया है। एंड दिस हैज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एंड दिस हैज नथिंग टू डू विथ जॉब डिससैटिस्फैक्शन एट द वर्क प्लेस। अंडरस्टैंडिंग आकांक्षा? तो एम्प्लॉय टर्नओवर दोनों रीजन से होता है, पहला अवॉइडेबल, दूसरा अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल कैसा रीजंस है? अवॉइडेबल रीजंस यानी मैनेजमेंट खराब है, वर्क प्लेस कल्चर अच्छा नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छा नहीं है, तुम्हारी सैलरी कम है, इंसेंटिव नहीं है, करियर प्लानिंग अच्छी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, करियर का ग्रोथ नहीं दिखता है तुमको, तब ये सब अवॉइडेबल रीजंस में आता है। सेकेंड फैक्टर, व्हाइल डिफाइनिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, तुमने टाइम यूज नहीं किया, टाइम का मेंशन नहीं किया। When you define employee turnover, you will always say the number of people who left the organization in a specific or in a particular period of time. जैसे हम ये बोलेंगे कि TCS का एम्प्लॉय टर्नओवर लास्ट ईयर का क्या रहा, तो लास्ट ईयर का मतलब सिर्फ 2021 का। अगर तुम इसको डिफाइन नहीं, क्योंकि हर साल टर्नओवर अलग अलग होता है और अलग अलग कारणों से होता है। जैसे कोविड के समय में there were a number of people who left their jobs, जिनका जॉब गया नहीं वो वॉलंटरली छोड़ दिए, और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे जो अपनी सर्विस से एब्सकॉन्ड कर गए क्योंकि इतनी खराब कंडीशन थी कि वो, और उनके लिए कंपलसरी था कि उनको जॉब पे आना ही आना है, लेकिन वो सर्विस से एब्सकॉन्ड कर गए और बाद में उनको टर्मिनेट कर दिया गया। बट वॉलंटरी ऑल्सो there were number of people who left the job, तो वो एम्प्लॉय टर्नओवर अलग कारण से हुआ और अलग टाइम फ्रेम में हुआ। ओके,
एम्प्लॉय टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब समझो ये फैक्टर जो तुम्हारे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अ गुड करियर प्लानिंग विल हेल्प यू टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। कैसे एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करता है अच्छा करियर प्लानिंग? सेम एग्जांपल लो, अभी जो थोड़ी देर पहले तुमको एक्सप्लेन किए। जो क्लर्क है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर तुम उसको आगे का रास्ता नहीं दिखाओगे ऑर्गेनाइजेशन में कि आप क्लर्क के बाद असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हो सकते हैं, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर प्रमोट हो सकते हैं, तो क्या वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा मैम। सोचेगा ना। इसीलिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स यू विद गुड करियर प्लानिंग, देयर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ द पीपल, द एम्प्लॉइज टू seek for better opportunities in the other organization. This is the meaning of this point. Next point. An organization with good career plan is able to have a better image in the employment market. This helps to attract and retain a competent people. Obviously, ये तो बहुत सिंपल है। तुम सोचो कि तुम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे हम बायजूस की बात करते हैं, जब हम बायजूस की बात करते हैं तो हम दोनों बात कहते हैं, पैसा ज्यादा देता है, वर्क कल्चर बहुत खराब, ये बोलते हैं ना। वेदांतु, उसकी बात भी हम वैसे ही करते हैं, पैसा देता है अच्छा और वर्क कल्चर खराब। और व्हाइट हैट जूनियर, इस तरीके की जो कंपनीज हैं ये कंप्लीटली अपने बिजनेस को डेवलप करने पे ही बेस्ड है। सो द मोस्ट रिक्रूटमेंट दैट दे डू इज फॉर द पोस्ट ऑफ BDE, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, और वो टारगेट एकदम अनरियलिस्टिक सा, अनअचीवेबल सा टारगेट होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग टेलीकॉलिंग। आप समझ सकते हैं कि वर्क कल्चर कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर वो ज्वाइनिंग पैकेज 7.5 लाख देता है, जो कि हार्डली कोई कंपनी देती है। ज्वाइनिंग पैकेज 7.5-8 लाख देना इज अ बिग थिंग। TCS 2.5 लाख ही देता है, 3 लाख ही देता है। लेकिन वर्क कल्चर इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, सच अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर आर पीपल हु, अगर आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन का जॉब ऑफर है, जैसे ICICI का जॉब ऑफर है और बायजूस का है, पीपल विल सजेस्ट यू दैट यू गो टू ICICI। प्राइवेट दोनों है, लेकिन यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ICICI, ओके, इन कंपैरिजन टू बायजूस। सो ऑब्वियसली कि मार्केट, और ये तुम कैसे डिसाइड करते हो? जो मार्केट में आया, मार्केट में इंफॉर्मेशन है, मार्केट रिसर्च किया हुआ है ये कि कंपनी ABC का वर्क कल्चर अच्छा है, वहां करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सीखने को मिलेगा, एंड कंपनी XYZ दैट इज नॉट दैट अ गुड कंपनी। ठीक है, ये मार्केट रिसर्च से तुम भी तो वैसे ही डिसाइड करते हो, राइट? दिस वाज ऑल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, लेकिन हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं अभी के क्लास में, नेक्स्ट क्लास मतलब कल है आपके साथ मेरा क्लास, राइट? कल 11 बजे से क्लास है। कल की क्लास में करियर प्लानिंग में जितना हुआ है क्लास में वो आप रिवाइज करके आइएगा। जो रिवाइज नहीं करेंगे प्लीज डोंट एंटर माय क्लास, क्योंकि कल हम पूछेंगे। ये सब टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि आपको ऐसे याद रह जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, और ये मुश्किल टॉपिक है थोड़ा सा समझने में, न्यू कॉन्सेप्ट है। ओके, कल की क्लास में रिवाइज करके ही मेरी क्लास में आइएगा। सुबह 11 बजे का टाइम है। किसी का बैटरी लो, नेटवर्क इशू आई कैन अंडरस्टैंड, किसी का बैटरी लो नहीं होना चाहिए, और नेट कनेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। कल 11 बजे से क्लास है, ठीक? सब पढ़ के आइएगा। थोड़ा सा 15 मिनट हम लोग सिर्फ रिवाइज कर लेंगे क्लास में, और फिर आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए के तरफ। वो तुम्हारे लिए बेनिफिट के लिए है। हाँ बोलो माही। ये पूछना था, जैसे कि अगर किसी कारण से, माही कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई मिस्ड आउट ऑन। मैम ये पूछ रही थी कि अगर किसी कारण से कहीं छोड़ के जा रहे हैं, अनदर सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो, इसके लिए अलग अलग सिटी में भी तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऑफिस होते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है ना कि हो, जरूरी तो नहीं है। और उस ब्रांच में अपॉर्चुनिटी हो या स्पेस हो तुम्हारे लिए, ये जरूरी नहीं है।
जैसे बैंक में छोटी जगह पे छोटी जगह में जब बैंक होता है, जैसे छोटी जगह यानी क्या, बिहार के छोटी छोटी जगह पे तुम ले लो, बक्सर है, सिवान है, ये सब थोड़ी छोटी जगह है। अब तुम गांधी मैदान की बात करोगे तो ये तो एसबीआई का एक तरीके से हेड ऑफिस जैसा हो गया इस जगह पे, लेकिन नॉट लाइक दैट। जिस ब्रांच में जिस सिटी में तुम जा रहे हो वहां पे अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग जॉब्स के बारे में बात करते हैं, वो लोग फिर भी कंसिडरेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप परमानेंट हैं और आप भी जानते हैं कि आप परमानेंट हैं, तो किसी तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है, लेट सवेर जो भी टाइम लगता है बट हो जाता है। आई एम टॉकिंग मोस्टली अबाउट द प्राइवेट जॉब्स। जैसे तुम इंडस्ट्री में काम कर रही हो, ठीक है, तुम इंडस्ट्री में हिमाचल प्रदेश में काम कर रही हो, और अगर तुम्हारी फैमिली या तुम्हारा जियोग्राफिकल लोकेशन वहां से चेंज होता है और दिल्ली आता है, जरूरी नहीं है कि तुमको सेम कैपेसिटी का जॉब मिल जाए। दूसरा डोमेन हो सकता है ट्राई करना पड़े, वहां तुम कोर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही थी, तुम प्रोडक्शन में काम कर रही थी, या वहां तुम कोर क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रही थी, और शायद तुमको दिल्ली में क्वालिटी कंट्रोल ना मिले। जैसे एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड एक ड्रग की कंपनी है, ठीक है, आप देखिएगा जाके, इट्स अ बिग कंपनी, दिस इज प्रोबब्ली द 5th और 6th लार्जेस्ट ड्रग कंपनी इन इंडिया रेटिंग, और इसका ब्रांच है, इसका जो ब्रांच है, प्रोडक्शन हाउस है, वो सिक्किम में है, दमन में है, बद्दी में है, हिमाचल प्रदेश में, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। लेकिन अगर तुम वहां से पटना शिफ्ट कर रही हो तो पटना में तो कोई ब्रांच नहीं है, पटना में इसका वेयर हाउस है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई है। तो इफ दैट जॉब सूट्स योर प्रोफाइल, which you know, the talented and educated people are, they find it hard to find it. Okay, so opportunity is also one thing, this we will discuss later कि career development में opportunities का क्या scope है। Okay Mahi? Yes ma'am. Next topic, write down problems in career planning. कल जो पढ़ के नहीं आएगा उसको हम क्लास के बाहर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, अटेंडेंस नहीं मार्क होगा। हम पहले ही बता रहे हैं, आज से जाके कल तक पढ़ के आओ, तभी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। मैम आज का तो छूट गया, लेट के ज्वाइन। Who's this? कल्पना, छूट गया तो अपने फ्रेंड से ले लो, कोई बात नहीं है, अभी डिस्कस तो हो ही रहा है, बस तुम्हारा लिखा हुआ तो नहीं था। आई एम डिस्कसिंग एवरी पॉइंट, व्हाई यू वरीड। चलो, problems in career planning. Now there have been so much talks about कि career planning किसी organization को करानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए career planning, वैसा होना चाहिए, लेकिन ground पे ये चीजें इतनी real हैं क्या? नहीं है। जैसे organization अगर छोटी हो तो क्या वहां बहुत ज्यादा scope होगा career development का, career planning का? इसलिए क्योंकि वहां छोटी ऑर्गेनाइजेशन को एक मेजर रिस्ट्रेन होता है कॉस्ट पे, ठीक है। कॉस्ट कटिंग इज वन थिंग ऑन विच द ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फोकस अ लॉट। सो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली करियर के प्लानिंग का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, एक क्वेश्चन का आंसर करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में मुकेश अंबानी का बेटा मान लो कि एमबीए है, और कोई और आदमी, कोई और एम्प्लॉय जो किसी और जगह से एमबीए करके जा रहा है, किसके करियर ग्रोथ का चांसेस ज्यादा होगा? अंबानी के बेटे की। अंबानी के बेटे की मैम होगी ना, अंबानी के बेटे की होगी, अंबानी के बेटे के दोस्त की होगी, अंबानी के बेटे के दोस्त के भतीजे की होगी, उन सब की होगी ज्यादा करियर प्लानिंग ज्यादा बेहतर। ये सब आप लोग इस बात से समझ सकते हैं। इसका यही मतलब होता है कि जो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि रिलायंस है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, उसमें जो फैमिली के मेंबर है, अंडरस्टूड सी बात है कि उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी।
तो वैसे केसेस में तो थोड़ा सा करियर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाता है ना, ये एक लिमिटेशन हो जाता है। तीसरा पॉइंट एक और देखो, लिमिटेशंस ऑफ करियर प्लान बताते हैं। जैसे कभी ये सुना है कि टीवी में ब्यूरोक्रेट्स ने ये एलिगेशन लगाया कि मेरा प्रमोशन रोक दिया गया, किसी और को मेरे जगह पे प्रमोट कर दिया गया, या क्योंकि मैंने इस नेता पे काम किया इसलिए मेरा गलत ट्रांसफर कर दिया गया। ये होते रहता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। यस मैम। होते रहता है। ये प्राइवेट जॉब में भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पॉलिटिक्स, जैसे 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 आप हायर पोजीशन पे जाएंगे वहां वहां पॉलिटिक्स बहुत बहुत डोमिनेंट होती चली जाती है। So despite all the tall talks that we have about career planning, this is one point that we cannot straight away neglect कि career planning में politics, nepotism क्या होता है? भाई भतीजावाद। अब ये बताइए, जब ये सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप लोग कि इंटरव्यू में इंटरव्यू का बोर्ड होता है जिसका चेयरमैन का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ताकि आप बाहर से बोर्ड को इन्फ्लुएंस ना करें। आए दिन इंटरव्यू के घपले में बड़े बड़े लोगों का नाम आता रहता है, इतना पैसा लिया उतना पैसा लिया, सुने कि नहीं? यस मैम। सुने ना? तो ये जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, अच्छा ठीक है बाहर से बोर्ड इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, लेकिन बोर्ड का मेंबर तुम्हारे मामा जी हैं तब चाचा जी हैं तब। उसी तरीके से बोर्ड का मेंबर किसी न किसी का तो रिलेटिव होता है। देयर आर चांसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशंस इन अपॉइंटमेंट्स। तो अगर वैसा होता है तो जो जस्ट एंड फेयर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। राइट? रहता है कि नहीं? इसके अलावा जब हम करियर प्लानिंग की बात करते हैं, एक आध दो करियर आपको ऐसे मिलेंगे जो हम लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का स्कोप किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ करियर प्लानिंग पे नहीं। इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हावी हो जाती है, जैसे कि स्टैटिस्टिशियंस। स्टैटिस्टिक्स समझते हैं? पहले जो स्टैटिस्टिशियंस होते थे वो लोग बहुत बड़ा बड़ा स्टैटिस्टिक्स बनाते थे, ठीक है? बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स वो लोग ऐसे ही बनाते थे। बट विथ द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स के आने की वजह से उनका स्कोप थोड़ा सा कम हो गया। तो ऐसे में करियर प्लानिंग को क्या मिलना चाहिए? करियर प्लानिंग को यह अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनको कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। राइट? कैन यू हियर माय वॉइस? बीच में रुक गया था मैम आपका आवाज। हाँ रुके की आवाज, ठीक है। आई वाज सेइंग कि जैसे स्टैटिस्टिशियंस ये लोग थे जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स होते थे, इनका स्कोप कंप्यूटर आ जाने के बाद थोड़ा कम हो गया। तो इनका करियर प्लानिंग में क्या अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए कि इनको कंप्यूटर का नॉलेज इम्पार्ट किया जाए। राइट? यस मैम। तो ये सब लिमिटेशंस आपको समझ में आया करियर प्लानिंग में? यस मैम। चलिए लिखिए फटाफट, इसको लिखिए। प्रॉब्लम्स इन करियर प्लानिंग। प्रॉब्लम्स इन करियर प्लानिंग, इसको जल्दी जल्दी लिखना। पॉइंट नंबर 1, career planning is the reality only when opportunities of vertical mobility are available. Sometimes it is not suitable for small organizations.
Sometimes it is not suitable for small organizations. Second, systematic career planning might become difficult due to क्या बोले, सिस्टमैटिक कैरियर प्लानिंग might become difficult due to favoritism, nepotism, political interventions, etc. Due to favoritism, nepotism, political interventions, etc. Done? Yes, ma'am. Next point. Yes, In- ma'am. Next point, write down. In family business houses, members of the family are expected to grow faster than their professional colleagues. मैं एक्सपेक्टेड टू के बाद क्या बोल रहे हैं? Expected to grow faster than their professional colleagues. Last point. इसका बहुत सारा पॉइंट्स है, कुछ फिल्टर करके हम तुमको बता दिए. Last point लिखो. Some careers do not have scope for much advancement. Some careers do not have scope for much advancement. Employees cannot get promoted. Employees cannot get promoted despite their career plans. Despite their career plans and development in such jobs. And development in such jobs. Done writing? These were the limitations of career planning. I am repeating this in tomorrow's class. I want everyone to participate. 11 बजे का class है. All of you will have the camera on. The class is not going to be a monologue. Only when I understand that आपका career planning का concept पीछे का थोड़ा सा clear है, तभी हम आगे बढ़ेंगे. वरना syllabus इस तरीके से complete करने का कोई मतलब नहीं होता है. I will make you revise again if I think that you falter on some concepts. लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है. ठीक है, पढ़ के आइए. कुछ छूटेगा रहेगा तो हम बताएंगे. ओके, मैम ट्रेनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा. जो क्वेश्चन करिएगा. ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है? जो क्लास में पढ़ाई हुई है बस उसको रिवाइज करके आना तुम. और तुम दिमाग मत लगाओ, तुमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे हम. चलो